A very good morning to my dear students. How are you? So, students, I hope that you all are fine. And here is our next chapter. And in this chapter, the main headline is that this will be dealing with the sound of music. So, in this unit of sound of music, which is unit second, we'll see the part one. Okay, we'll see the part one, which is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Okay, Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Okay, now? So before we read, first of all, we should go through these 2 points. I'm reading for it. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. मतलब ये है कि जो एवलिन क्लेनी है, शी लॉस्ट हर हियरिंग, बट इसके रिटर्न में गॉड ने उसे ऐसा कुछ दे दिया जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. और वो क्या है कि शी कैन नॉट हेयर बट शी कैन फील द म्यूज़िक. ठीक है ना. तो इट्स वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड ऑफ थिंग. क्लियर. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन who fought against a physical disability and made her life a success story. So students, ये चीज़ थोड़ा समझने वाली है कि this is actually a success story. ठीक है. अच्छा, सक्सेस स्टोरी इन अ कंडीशन व्हेन शी हैड सम रिस्ट्रिक्शन, व्हेन शी हैड सम डिसेबिलिटी. तो ये समझने की स्टोरी का बेसिकली जस्ट यही होगा स्टूडेंट्स कि बियॉन्ड ऑल द डिफ़िकल्टीज, बिसाइड्स ऑल द डिफ़िकल्टीज एंड ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस एंड दैट यू कम अक्रॉस इन योर लाइफ, यू शुड ऑलवेज बी ready to give hard work, ready to do hard work and give your best. क्लियर. स्टोरी का आप समरी यही समझोगे कि सिचुएशन कैसी भी हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसेबिलिटी और द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव. ठीक है. तो आगे समझते हैं कि शी फील्स म्यूज़िक में और शी हियर्स म्यूज़िक में क्या है. ठीक है ना. Let's try to understand this quite practically. So first of all, go through these words. Okay, so here jostle means push roughly, slight means small and thin, daunting means frightening, aspiring musician means a person who wants to be a musician. Clear. So here the first point says rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. सो हियर इज़ अ पॉइंट कि एक रश आवर का सिचुएशन है जहाँ पे एवरी वन इज़ पुशिंग वन अनदर वेरी रफली, ताकि एक पोजीशन मिल जाए उस अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पे. ठीक है. और वहाँ पे एक छोटी सी स्लाइट गर्ल, मतलब छोटी सी पतली सी लड़की जो कि 17 ईयर्स से ज़्यादा छोटी है और मतलब 17 साल से भी छोटी है, वो थोड़ी नर्वस थी फिर भी एक्साइटेड थी. वाई एक्साइटेड? बिकॉज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. ठीक है ना. वो वाइब्रेशन को फील कर पा रही थी. देखो, दो चीज़ होता है. व्हेन यू आर एग्जैक्टली सिटिंग और स्टैंडिंग नियर द प्लेटफॉर्म एंड व्हेन द ट्रेन इज अबाउट टू रीच, so you will see, like your legs will be vibrating, or rather say that you can feel the vibration in your legs, through your legs, through your eyes, sorry, through your ear lobes, through your hands. कुछ ना कुछ ऐसा वाइब्रेशन सा होता है. तो although she was not able to hear the train's sound, but was not able to hear the sound of train, but she could feel the vibration of the train. ठीक है ना. अच्छा, अब सिचुएशन क्या था कि वो उसका फर्स्ट डे था प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन का, जहाँ उसे ज्वाइन करना था फॉर हर कोर्स ऑफ म्यूज़िक. ठीक है.
सो एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम कॉलेज फ्रॉम, मतलब वो ऐसा प्लेस था कि आपको थोड़ा सा, भाई किसी नए स्कूल में जाते हो, कहीं नए कॉलेज में जाते हो तो डर लगता हो, वही शी वॉज फीलिंग अ बिट फ्राइटनिंग. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज. इसके पास और बड़ा चैलेंज था क्योंकि शी वॉज प्रोफाउंडली अ डेफ. ठीक है. वो एक तरीके से डेफ थी. ऑल्दो शी कुड फील, बट टेक्निकली शी इज़ अ डेफ ना, बिकॉज शी कैन नॉट हियर. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Gradual means धीरे धीरे हुआ था. ऐसा नहीं था कि शी वॉज बॉर्न डेफ, या फिर कुछ अचानक से हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया एंड शी लॉस्ट हर हियरिंग. नहीं, उसका जो हियरिंग का लॉस है वो धीरे धीरे, जैसे कि उसको पहले सुनाई देता था, फिर धीरे धीरे कम सुनाई देने लगा, फिर धीरे धीरे और कम सुनाई देने लगा, फिर बिल्कुल सुनाई देना बंद कर दिया. ठीक है. और चलो आगे देखते हैं. एवलिन ग्लेनी. अच्छा हाँ, एक चीज़ और स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है ना, स्टोरी के एंड में एक ऐसी चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा जो कि इसमें है नहीं, लिखी नहीं है, बट दैट इज एक्चुअली द एसेंस ऑफ द स्टोरी, दैट हाउ शी मैनेज्ड टू बिकम सच अ सक्सेसफुल लाइफ, टू सच अ सक्सेसफुल पर्सन. ठीक है. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. ये सारी चीज़ें, अब देखो होता क्या है ना, यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपको कैच करना है. This was the turning point actually. This was the turning point of the life of Evelyn Glennie. ठीक है. सो व्हाट हैपेंड दैट एवलिन ग्लेनीज का जो हियरिंग लॉस है वो ग्रेजुअल था, एंड हर मदर नोटिस्ड सम डे व्हेन शी वाज 8 year old. जब उनकी मदर ने उनसे कहा कि व्हेन एवलिन वाज प्लेइंग टू प्ले वेटिंग टू प्ले पियानो, सो दे कॉल्ड हर नेम, एवलिन का नाम बुलाया जाता है, एंड एवलिन डिडंट मूव. बाद में रियलाइज़ होता है कि एवलिन ने सुना ही नहीं, शी इवन हैडंट हर्ड. ठीक है. ये लाइन आ रही ना हैडंट हर्ड की. क्लियर. सो ये बात हैडंट हर्ड कौन कर रहा है? इजेबल ग्लेनी कह रही है. हर मदर. ठीक है ना. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. फिर कुछ दिन तक उन्होंने अपना डेफनेस को कंट्रोल करने का कोशिश किया, छुपाने का कोशिश किया फ्रेंड्स और टीचर्स से. बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जब वो 11 years की हुई, तो जब वो 11 years की हुई उसके बाद क्या सिचुएशन था कि द थिंग्स बिकेम डिटोराइटेड और नो वन कुड कंसील अबाउट हर थिंग्स. फिर उसके बाद वहाँ स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी दैट अर्ज्ड टू हर पेरेंट्स कि आप इसे किसी स्पेशलिस्ट के यहाँ दिखाओ. और फिर स्पेशलिस्ट ने कहा आप क्या, आप इन्हें एक हेयरिंग एड डिवाइस दे दो. हेयरिंग एड डिवाइस का मतलब होता है जिससे कि ये चीज़ों को सुन पाएँ. ठीक है. और उसके बाद हेयरिंग एड डिवाइस को देने के बाद, आफ्टर गिविंग हर हेयरिंग एड डिवाइस, सेंड इट टू द स्कूल ऑफ डेफ्स. ठीक है. वेयर द डेफ पीपल स्टडी and learn, send it to that place. But listening to this, hearing to this, or not hearing to this, but getting this known by this Evelyn Glennie. So she was shocked and she was completely blanked कि what happened to me. So students, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि here, since she started, मैंने कहा था ना कोई कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जो उस पूरे बुक में कहीं नहीं है, बट मैं समझाऊंगा आपको. जस्ट लिसन टू दिस. फॉर क्वाइट, ठीक है, अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग
डेफनेस। ठीक है, ये पॉइंट आपकी समझने वाली थी, ये पॉइंट आपके समझने वाला था। क्यों समझने वाला था? देखो, here it is written that she managed, and when you manage, इसका मतलब कि you tried, you tried। सारा का सारा जो जिस्ट है वो इसी में छिपा हुआ है कि she started to take action, or it's rather say that she started to find an alternative to hearing। एक्चुअली शी डेवलप, देखो होता क्या है ना, इसमें आगे सिचुएशन क्या आएगी, मैं थोड़ा सा पहले से आपको बता देता हूँ तो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि स्टोरी में आगे सिचुएशन ये आएगी कि एवरीथिंग व्हाट शी डज इज जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस फील काइंड ऑफ थिंग, कि वो दैट शी कैन फील एवरीथिंग। ठीक है, दैट शी कैन फील एवरीथिंग, जो भी कुछ होता है उसके फील करने के सिचुएशन पे डिपेंड करता है, एंड शी कैन फील एग्जैक्टली एवरीथिंग। सो अब सिचुएशन यहाँ पे यही है कि इफ़ शी कैन रियली फील, तो हाउ कैन शी फील? तो देखो ये इसकी एबिलिटी डेवलप होती है वहाँ से जब उसे ऐसा फील होता है कि नहीं मुझे चीज़ों को छिपाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब आप किसी चीज़ को छिपाते हो, जैसे मान लो कि आप या मैं एवलिन हूँ, ठीक है ना, और मुझे मालूम है कि कैन नॉट लिसन टू इट, वॉट एवर पीपल से आई कैन नॉट हेयर, but I have to pretend like hearing। ठीक है, I have to pretend like that I'm hearing and I'm understanding whatever the people say, कि लोग क्या कह रहे हैं। तो उसके सब्स्टिट्यूट में मैं क्या करूँगा कि I will start taking efforts। What kind of efforts? कि I'll look into his eyes, जो भी स्पीकर है मैं उसके आइज़ में देखूँगा कि what kind of emotion that person is expressing। हाँ, हालांकि आप आइज़ में देख के इमोशन कैसे पता कर सकते हो कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एग्रेसिव है, लवेबल है, हेट्रेड है, कैसा है। ठीक है, बट वंस यू ट्राई यू फेल, अगेन यू लर्न समथिंग, देन यू लर्न समथिंग। देखो होता क्या है ना कि मान लो किसी का आँख, कोई अपना बहुत ज़्यादा आँखें घूर के बात कर रहा है, सो एक इम्प्रेशन आता है कि यार ये बंदा थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में है। ठीक है, अच्छा, उसके लिप्स मूवमेंट भी कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। देखो यहाँ पे एक पॉइंट कैच करने वाली कि शी वॉज नॉट बाई बर्थ बॉर्न, शी वॉज नॉट डेफ बाई बॉर्न व्हेन शी वॉज बॉर्न। ठीक है ना, वो डेफ बाई बर्थ नहीं थी। एवलिन ग्लेनी वॉज नॉट अ डेफ बाई बर्थ। सो शी नोज द लैंग्वेज, उसको लैंग्वेज का आइडिया था कि अगर हम लोग बात करते हैं क ख ग घ या फिर ABCD, सो शी नोज, या फिर हम लोग बोलते हैं टोरेंटो, या फिर कमिंग टू स्कूल, तो कमिंग टू स्कूल में जो मूवमेंट है लिप्स का, वो उसे भी मालूम है कि हाँ अगर कोई बंदा बोल रहा है कमिंग टू स्कूल तो कैसा मूवमेंट होगा। तो कहने का सिचुएशन ये है कि इस स्टोरी में जो बात कही जा रही है कि शी हैड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड ऑफ थिंग, वो यही था। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहाँ से आया था? वो यहीं से आया था दैट उसने अपनी हेयरिंग का एक ऑल्टरनेटिव शुरू से ही सोचना शुरू कर दिया था। क्या मुझे छिपाना है, मुझे कंसील करना है लोगों से, एंड क्योंकि मुझे कंसील करना है सो दैट इज़ वाई आई विल प्रिटेंड लाइक आई एम हियरिंग। अच्छा, जब प्रिटेंड करोगे तो चीज़ों को प्रॉपरली कैच करने की भी कोशिश करोगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उसका एफ़र्ट था कि मुझे लोगों से छुपाना है, इस एफ़र्ट की वजह से वो कई सारी ऐसी चीज़ें सीख गई, जैसे लिप्स मूवमेंट को समझ पाना, आइज़ को देख के उसके इमोशन को समझ पाना। ठीक है, उसके वाइब्रेशंस को, उसको कुछ ना कुछ वाइब्रेशन फील होता था, उन चीज़ों को देख के समझ पाना। सो ऐसे कई सारी चीज़ें थी। ठीक है, सो दिस वाज दिस सेकंड पार्ट राइट नाउ मूविंग फॉरवर्ड। बट एवलिन वॉज, अब यहाँ की बात ये है कि उसको ये सजेशन दिया जाता है कि इनको आप किसी ऐसे स्कूल में डालो जहाँ पे डेफ का स्कूल होता है। ठीक है, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव, यानी एवलिन गिव अप नहीं करने वाली थी, एंड शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different tones. Don't listen through your ears.
he would say, try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drums from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. ठीक है. So take the important points. Impaired means weakened. वीकेंड मीन्स आपका किसी चीज़ से बहुत कमज़ोर हो जाना. ठीक है. जाइलोफोन जिसकी बात की जा रही है वो यही जाइलोफोन है. ठीक है. अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रो ऑफ वुडन बास और डिफरेंट लेंथ्स. ठीक है. परकशनिस्ट होता है तबलाकार. अ पर्सन हु प्लेज ड्रम और तबला, जो तबलाकार होते हैं इनको परकशनिस्ट कहते हैं. ठीक है ना. क्या कहते हैं? परकशनिस्ट. स्पेलिंग याद रखना, PURCUSSIONIST, परकशनिस्ट. ठीक है. क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. पोटेंशियल मीन्स किसी के अंदर कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है किसी काम को करने की. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ सेज अबाउट द थिंग कि शी वॉज नॉट एबल, लाइक एवलिन वॉज नॉट रेडी टू गिव अप टू दिस सिचुएशन, और शी वॉज टोटली डिटरमाइंड कि मुझे एक अच्छी सी लाइफ, नॉर्मल लाइफ जीनी है और उसे अपना जो करियर है, मतलब जो उसका इंटरेस्ट है म्यूज़िक, उसी में प्रोसीड करना है. ठीक है. सो वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल. किसी दिन वो एक लड़की को नोटिस करती है. वो लड़की जाइलोफोन प्ले कर रही होती है. जाइलोफोन क्या, मैंने जस्ट अभी बताया. ठीक है. सो वो भी ये प्ले करना चाहती है, यानी एवलिन भी ये प्ले करना चाहती है कि उसे भी ये चीज़ सीखनी रहती है. तो ऐसा सुनते हुए मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर. बहुत सारे टीचर्स ने इससे डिस्करेज किया. लेकिन जो परकशनिस्ट था रॉन फॉब्स एक तबलाकार था. ठीक है ना. परकशनिस्ट स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसकी पोटेंशियल को कैच करता है, समझ पाता है, पकड़ पाता है, और उसके बाद उसको दे देता है 2 लार्ज ड्रम्स 2 डिफरेंट नोट्स पे. ठीक है. जिस पे कि उसको कहता है कि आप प्ले करो, और प्ले करो उसकी चीज़ों को, फिर समझो, मतलब लिसन करो. लेकिन लिसन करो, बट कैसे लिसन करो? लिसन टू इट बट डोंट लिसन टू इट थ्रू योर ईयर्स, rather listen it with some other way. Try to hear it with some other way, या फिर फील करो उसको. ठीक है. सेंस इट. इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि वो उसको ये नहीं कहता है कि आप इसको सुन लो और गा लो, पढ़ लो. नहीं, कहता है कि आप प्ले करो. सुनाई आपको देता नहीं है, उसको किसी और तरीके से सुनने की, समझने की, सेंस करने की, फील करने की कोशिश करो. तो यहाँ पे देखो, एक मेंटर मतलब जो उसका गाइड है, उसको एक मोटिवेशन दे रहा है, करेज दे रहा है कि आपको नहीं आता है, डोंट वरी, फाइंड सम अदर वे. और यही इसका लेसन है स्टूडेंट्स, कि जो चीज़ इम्पॉसिबल है, इफ़ यू कीप ऑन सर्चिंग एंड वर्किंग ऑन इट, दैट ऑल्सो बिकम्स पॉसिबल. ठीक है ना. अब ऑब्वियस सी बात है कि हाउ कैन वन फील म्यूजिक? ठीक है ना. मीन्स फॉर एग्जाम्पल यू प्ले अ सॉन्ग and you can without hearing it you can understand the lyrics. आप कोई गाना प्ले करो और आप सॉन्ग को प्ले करने के बाद उस सॉन्ग को बिना सुने ही उसके लिरिक्स को समझ जाओ. दैट्स अ काइंड ऑफ मैजिक. बट इट वाज एक्चुअली नॉट अ मैजिक. शी डेवलप्ड दिस स्किल. ये स्किल डेवलप किया था कहाँ से? जब उसने डिसाइड किया एवलिन ने कि मुझे गिव अप नहीं करना, मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जीऊँगी. क्लियर. आओ आगे बढ़ते हैं. हाँ, अब देखो इसमें क्या कहता है, इसी पैराग्राफ की भी बात कर रहे हैं. सो उसको कहता है कि भाई आप उसको फील करो. अच्छा, देन आफ्टर जब एवलिन ट्राइड, तो उसको ये महसूस हुआ कि हायर ड्रम की जो वॉइस है वो वेस्ट अप साइड से आ रही है, और जो लोअर ड्रम की साइड की जो वॉइस है, यानी जो भी फील है, वाइब्रेशन है, वो वेस्ट डाउन आ रही है. वेस्ट डाउन मतलब कमर के ऊपर और कमर के नीचे. ठीक है. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइजेज एंड सून डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब फोर्ब्स ने उससे कहा कि भाई, फोर्ब्स ने नोट्स को रिपीट करता रहा, और रिपीट करने के बाद उसको रियलाइज़ होता है, यानी एवलिन को रियलाइज़ होता है कि वो डिफरेंट नोट्स मतलब वो अपना लिखने वाला नोट्स नहीं होता, ये म्यूज़िक में नोट्स होता है. ठीक है ना. सेट किया जाता है, हाई नोट, लो नोट, पिच नोट, इस टाइप से होता है. क्लियर. तो वो उन नोट्स का, अलग अलग नोट्स का वाइब्रेशन अपने बॉडी में फील कर पा रही थी.
क्लियर हो रहा है ना? सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अब स्टोरी थोड़ी सी है, इट्स अ बिट टाइम टेकिंग, सो I'll complete the next part. I'll complete the rest of the part in next class. So as if now, that's all for the day, बच्चों. Thanks a lot.